Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to Equations, and today we are again back with one more video, with one more lecture. And today I have taken a very basic topic because whenever we talk about competitive exams, so आपके questions आते हैं ना, they are more based on the basics of grammar. तो टुडे विल सी कि बेसिकली ग्रामर होती क्या है, लाइक कैसे आता है, एक सेंटेंस में क्या क्या लगता है. So it will be, small explanation of each and every part of grammar, and we will be revising all the main rules and everything. Before I come to my main topic, I just want to tell you guys that we are available in Play Store as well as Equations IS app, and we have a comprehensive courses over there. So you guys may go there, download the application, and you can access our courses over there. And please subscribe our YouTube channel, like it, share videos, and do watch them regularly because it will, I'm sure, it is going to help you. Now let's come to the main topic, and the main topic which is about grammar basics. Okay, the basics of grammar. Now what do you understand by this? What is this? As we all know, एक English में हम क्या लिखते हैं? हम English में sentence लिखते हैं. Now, first tell me what is sentence according to you? Sentence is something, a group of words that gives you some meaning, right? That gives you some meaning. Those group of words that gives you some or the kind of meaning, ये जो होता है, आप ऐसे तो कुछ नहीं लिख सकते. They has to be arranged in a way. Meaning तभी आएगा when they are arranged in a way. And when I say they has to be arranged in a way, so इनका एक structure होता है. And this is something that we have discussed a lot more times, that the structure is subject plus verb plus object. So this is the structure of sentence that says subject plus verb plus object. Now let's come to this. What do you understand? जब मैं सेंटेंस लिखती हूँ, उसके लिखने का तरीका होता है, पहले मैं सब्जेक्ट लिखती हूँ, फिर मैं वर्ब लिखती हूँ, फिर मैं ऑब्जेक्ट लिखती हूँ, राइट? अभी सब्जेक्ट क्या होता है? What do you understand by subject? क्या सब्जेक्ट का मतलब मैं ये कह सकती हूँ सब्जेक्ट का मतलब विषय है, किस बारे में बात हो रही है? या किसके बारे में हो रही है? अगर कोई चीज है तो what, अगर कोई इंसान है तो who. Anything and everything that is answering my what and who is a part of my subject. Now subject में क्या रहता है मेरा? Either the subject is my noun or subject is my pronoun. Is it clear? When I say noun, we know we have proper noun, we have common noun, and we have abstract noun. मेरा सेंटेंस मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन से स्टार्ट होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी रेयर केस में होता है, जब मैं बात ही फीलिंग्स इमोशंस की कर रही हूँ उस केस में, राइट? नाउ व्हाट इज माय प्रॉपर नाउन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन मीन्स जब मैं किसी का नाम ले रही हूँ, राम, श्याम, ताजमहल, किसी नेम ऑफ समथिंग, नेम ऑफ अ प्लेस, एक स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल. कॉमन नाउन होता है जाति, जातिवाचक. कॉमन नाउन है जातिवाचक, जब आप किसी जात से रिलेटेड बोल रहे हो, राइट? बॉय, गर्ल, जब मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रही. तो मेरा सेंटेंस हमेशा या नाउन से स्टार्ट होगा या प्रोनाउन से होगा. नाउन में भी आइदर इट वुड बी अ प्रॉपर नाउन और इट वुड बी अ कॉमन नाउन. इज इट क्लियर? लेकिन when I am talking about my pronoun, if I talk about my pronoun मतलब सर्वनाम, something that can replace, that can be pronoun
Either the noun that I have is a proper noun or a common noun. Now let's study what are my nouns. I mean pronouns. When I talk of my pronoun, या तो वो होते हैं नॉमिनेटिव केस या वो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस या होते हैं पोजेशन। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन मेरे सब्जेक्ट में यूज होते हैं। नॉमिनेटिव ही, शी, इट। मेरा सेंटेंस ही, शी, इट से स्टार्ट होगा, दे, वी, राइट। मेरा सेंटेंस कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि हिम, हर, देम। मेरा सेंटेंस कभी भी इससे स्टार्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट नहीं होगा, राइट। So my sentence, in the case of pronouns, my sentence always starts with nominative, but it can also start with my possession, possessive noun, his, her, their। but इसके साथ एक लॉजिक होता है। his, मतलब इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, his pen, her plus their idea। तो मेरा सेंटेंस पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ ही स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके साथ आप एकदम ऑब्जेक्ट लिखोगे, क्योंकि पोजेशन होता है किसका, उसका, मेरा, तेरा, राइट। अंडरस्टूड? नाउ व्हाई, व्हाट्स द रीजन दैट आई हैव बीन टेलिंग यू अबाउट दिस? कुछ तो रीजन होगा ना। मेरा, हम स्पॉट एरर करते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, हम जो है रिप्लेस बाय करेक्ट फ्रेज करते हैं ना। तो सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर ही तो समझेंगे उसमें। मेरा पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन होगा। और एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, स्पेशली जब हम स्पॉट एरर करते हैं, एक चीज का ध्यान रखना कि नेवर माई एरर विल बी इन द सब्जेक्ट पार्ट। मेरे सब्जेक्ट पार्ट में कभी भी कोई भी एरर नहीं होगा। It cannot happen. It will not happen. Getting my point? तो यहाँ पे कोई एरर ही नहीं होगा, सब्जेक्ट में कभी नहीं आएगा। तो क्योंकि सब्जेक्ट से ही मेरे सेंटेंस का फाउंडेशन ले होता है, सब्जेक्ट ही डिटरमाइन करेगा मैं किस वे में बोलना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। और अगर यहाँ पे ही मेरा एरर आ गया तो पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ही नलिफाई हो गया ना। अब हमें ये तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट के पार्ट में तो हम क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आ गया, अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है डूइंग एक्शन, क्रिया। मेरा सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। जो हमें बताए क्या काम हो रहा है। जो वर्ब होते हैं ना, इधर इट इज ऑक्सिलरी और इट इज मेन, राइट। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एरर आते हैं। यहाँ पे जो वर्ब वाले पार्ट में मेरे स्पॉट एरर में एरर आएंगे, कौन सा होंगे? अगर मैं कैसे बात करूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो आता है मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि मैं सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाऊं। कौन सा वर्ब लगाऊं का मतलब क्या होता है, सिंगुलर लगाऊं या प्लूरल लगाऊं, राइट। अब कैसे डिटरमाइन करूंगी कि मेरा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर मेरा नाउन
he is, राम is, she is। लेकिन अगर मेरा नाउन ही प्लूरल है, they, we, children, students, तो उसके साथ आर हो जाएगा। तो लाइक वर्ब जो है मेरा किससे कोइंसाइड करेगा, किससे एग्री करना चाहिए, सब्जेक्ट से। मैं ठीक है, और इसमें जो एरर आते हैं या तो आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कि मैं कौन सा लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं या प्लूरल लगाऊं, या फिर आते हैं टेंसेस के। इस एरिया में पर्टिकुलरली पाए जाते हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं, जो मेरे टाइम, फ्रेज और वर्ब बताए। राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के या फिर टेंसेस के। टेंसेस क्या होते हैं, जो क्या किसके बारे में बताए, फ्रेज ऑफ टाइम की जो बात हो रही है वो पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है या फिर फ्यूचर में हो रही है, इस बारे में बताए। नाउ जब मैं वर्ब की बात कर रही हूं, या तो वर्ब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या होता है, हेल्पिंग, इज, आर, हैज, हैव, वाज, वर, ये सब होते हैं, हैड, ये सब होते हैं मेरे पास्ट के ऑक्सिलरीज होते हैं, मेरे प्रेजेंट के ऑक्सिलरीज होते हैं। अब मुझे पता है इज, आर, हैज में क्या फर्क होता है, ये ओ वाई कंडीशन दिखाता है, ये पोजेशन। शी हैज अ पेन, मेरे पास पेन है, शी इज अ पेन होता तो मेरा खुद पेन है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, राइट। सेम जो इज, आर होता है दैट इज वाज, वर, एंड हैज, हैव इज रिप्लेस्ड बाय हैड इन पास्ट। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब मेन वर्ब का रूल क्या कहता है, मेन वर्ब का रूल कहता है मेरा कि अगर मेरा, जब मैं प्रेजेंट टेंस में बात करूं, बेसिकली हमें पता ना, गो गॉन हो गया था, आई एम सॉरी। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। मेरी जो पार्टिसिपल फॉर्म है वो कब लगती है, परफेक्ट टेंस के केस में, राइट, ये लगती है पास्ट टेंस के केस में। अब प्रेजेंट के केस में भी दो चीजें आती है, सिंगुलर है मेरा नाउन या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है, शी, ही, उसके साथ एस लगेगी, गोस, स्लीप्स, ईट्स, एस फॉर्म। और अगर प्लूरल है, दे, वी, चिल्ड्रन, तो उसके साथ नो एस फॉर्म लगेगी, गो, प्ले, ऐसे में लगेगा। अंडरस्टैंडिंग। नाउ अब मैं ये कर चुकी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ पे इतनी स्पेस क्यों छोड़ी, क्योंकि इस जो ऑब्जेक्ट के बीच में आते हैं वो आते हैं डिटरमाइनर्स। नाउ व्हाट आर माय डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स होते हैं जो क्या बताए, मेरा क्या डिटरमाइन करे, डिटरमाइंस माय ऑब्जेक्ट। बिकॉज डिटरमाइनर्स बहुत सारे होते हैं, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड लॉट मोर, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट समझाऊंगी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता है भी मेरा जो नाउन या प्रोनाउन होता है जो लास्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा, मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बताया था ना, वो वाले। नाउन कौन सा आएगा आपका, मटीरियल नाउन या ऑब्जेक्टिव नाउन, जो मेरे हूम का आंसर दे, राइट, जो बताए किसके साथ क्या, मतलब किसने किया, किया हो गया, किसके साथ किया, या ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। आई वॉज स्टडिंग मैथ्स, कौन पढ़ रहा था, मैं पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, मैथ्स पढ़ रही थी, तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ठीक है।
मैं पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी? मैथ्स। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताए, ये सेंटेंस का एंड होता है। ये भी है, नाउन होगा या प्रोनाउन? नाउन होगा तो ये मटीरियल या ऑब्जेक्टिव, और प्रोनाउन के केस में कौन सा होगा? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। हिज, हिम, हर, दे, राइट, ऐसे वाले ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे अब वर्ब और ऑब्जेक्टिव के बीच कौन से एरर्स आते हैं, ये समझते हैं। ये तो मैंने पढ़ लिया, वर्ब और ऑब्जेक्टिव के बीच कौन से एरर्स आते हैं? डिटरमाइनर्स के एरर्स आते हैं। जब मैं डिटरमाइनर्स की बात करूं तो आता है मेरा आर्टिकल, आता है मेरा प्रीपोजिशन, आता है मेरा एडजेक्टिव, आता है। ठीक है, अब मैं ये समझती हूँ ये सब क्या आता है। व्हाट इज माई आर्टिकल? आर्टिकल होता है जो मेरे नाउन को स्पेसिफाई करे। क्या स्पेसिफाई करे? कि जो मेरा नाउन है वो जनरल है, जो मेरी बात है वो जनरल है, इनडेफिनेट है। अगर इनडेफिनेट है तो ए और एन लगाते हैं, और अगर डेफिनेट है, कुछ विशेष बात हो रही है, राइट, तो हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं उस केस में। अंडरस्टैंडिंग? ए इनडेफिनेट के साथ ए और एन। अब इसमें भी हम देखते हैं, अगर आपको पता हो साउंड्स ऑफ वॉवल के साथ एन लगेगा, बाकी ए लगेगा। अब ए और एन को अगर मैं डिटेल में पढ़ूं थोड़ा सा, ए एंड द, हमने काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पता ना हमें? काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको मैं हेड काउंट कर सकती हूँ। इसका सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। तो सिंगुलर के साथ तो ए या एन लगेगा, और प्लूरल के साथ द लगेगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं मेरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या वो कॉमन नाउन जो इतने माइन्यूट होते हैं जिसे मैं गिन नहीं सकती। राइस, वाटर, मिल्क। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भावनाएं, लव, हेट। तो ऑब्वियसली बात है मैं गिन नहीं सकती। इसका मेरा कोई, ये हमेशा सिंगुलर में रहते, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। प्लूरल होता है सिर्फ उन चीजों का जिसका मैं हेड काउंट, नंबर काउंट कर सकूं। ये क्वांटिटी में, हम इसकी क्वांटिटी मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा द लगेगा, कभी भी ए और एन नहीं लगेगा। इनके साथ हमेशा द लगेगा जब आर्टिकल का केस है। इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अगर मैं अपने प्रीपोजिशन की बात करूं, जैसे कि नाम ही बता रहा है प्रीपोजिशन, ये मेरे नाउन, जो नाउन या प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के उसमें है, कंटेक्स्ट में, उससे पहले लगते हैं क्या बताने के लिए? टू एडर टू डिटरमाइन टाइम, मेरे नाउन किस समय में हो रहा है, प्लेस, प्लेस या फिर पोजीशन। तब मैं ये डिटरमाइन कर रही हूं कि मेरा जो नाउन जो ऑब्जेक्ट के केस में यूज हुआ है या प्रोनाउन है, उसका टाइम, उसका प्लेस या पोजीशन, तब मैं प्रीपोजिशन लगाती हूं। राइट, इट डिटरमाइंस दीज थिंग्स। इसको हमने काफी डिटेल में किया है आगे। फिर आपका आता है प्रीपोजिशन के बाद आता है एडजेक्टिव। मेरा एडजेक्टिव होता क्या है? विशेषण, विशेषता, जो क्वालिफाई करता है मेरे नाउन को, नाउन की क्वालिटी बताए कि मेरा नाउन कैसा है, किस तरीके का है, वो चीज जो मेरे नाउन की क्वालिटी बताए, मेरा एडजेक्टिव, मेरा विशेषण होता है। तो मेरे नाउन की विशेषता बताए, क्या, कैसे, राइट, मेरा नाउन कैसा है। जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसका एक रूल है कि वैसे तो डिग्री स्पेसिफाई करता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब हम नॉर्मली लिख रहे होते हैं सेंटेंस तो अ आता है। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय माय आर्टिकल अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ लेजी बॉय। जो मेरे नाउन के गुण बताए कि मेरा नाउन कैसा है, ठीक है, उस कॉमन नाउन,
इस केस में कॉमन नाउन के साथ अ लगेगा, राइट। अगर मैं इसमें अब डिग्री की बात करूं, अगर मैं डिग्री की बात करूं, एडजेक्टिव 3 डिग्री में होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कि एग्जांपल देख लो, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। गुड में पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ हमेशा अ आएगा। बेटर डिपेंड करता है इसके साथ आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, जैसे कि इट इज अ बेटर प्लेस। जब आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर रहे हो बट आप रेफरेंस दे रहे हो कि अच्छी प्लेस है, तब तो अ आएगा। लेकिन इट इज बेटर देन दैट, जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, दैन लिखोगे और कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और सुपरलेटिव के साथ हमेशा द, आर्टिकल द आता है। अंडरस्टैंडिंग, और ये हमेशा अब नाउन से पहले लगता है क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है, मेरा नाउन कैसा है। वेयर एज लास्ट पार्ट पे आते हैं एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब होता है मेरा जो डिग्री बताए और मेरा वर्ब, मेरे वर्ब की या फिर मेरे ऑब्जेक्टिव नाउन की कितना है। ही इज अ गुड बॉय, ही गुड बॉय, ये तो मेरा हुआ एडजेक्टिव, ये हुआ मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा हुआ एडजेक्टिव। अगर मैं कहूँ इज अ वेरी गुड बॉय, ये हो गया मेरा एडवर्ब, राइट। शी इज स्लीपिंग साउंडली, कैसे सो रही है? साउंडली। आई गो ऑफनली, कितना जाते हैं? ऑफनली। तो ये सब जो मैंने डिग्री बताई, कितनी बार, कितना, इस कंटेक्स्ट में क्या यूज होता है? एडवर्ब यूज होता है। और समझ में आया? तो हमने आज क्या समझा? इन नटशेल मैंने आपको पूरी ग्रामर के पार्ट समझाए हैं। आज आपको इंपॉर्टेंस बताई है स्पॉट एरर में कि मेरा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे डिटरमाइनर आते हैं, यहाँ ये मेरा नाउन या प्रोनाउन होता है, यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। इन दोनों के बीच में टेंसेस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर होते हैं और इसके बीच में डिटरमाइनर्स के एरर पाए जाते हैं स्पॉट एरर्स में, जैसे कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे वाले एरर्स पाए जाते हैं, राइट। एंड सेंटेंस को हम इस तरीके से फ्रेम करते हैं। सो दिस इज इन नटशेल कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में जो एरर्स आते हैं वो किधर, अब आपको इतना आइडिया हो जाएगा। प्रीपोजिशन का एरर है तो किस साइड आएगा, वर्ब का एरर है तो किस साइड आएगा। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू आई थॉट दैट इट इज very important for you people to know, so I have tried to clear all the concepts. जो लोग CDS का प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है एक छोटा सा वीडियो है जिससे उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रामर का पार्ट पूछते हैं जब, तो इसमें उनको मैक्सिमम आंसर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे। अदरवाइज आपको लगता है कि आप यू वांटेड टू नो समथिंग, और मे बी अगर आपको लगता है कि you have some doubt, some query, please post it in the comment section and I shall assist you. For today this is all. Let's see you in the next video and with a new topic that is again beneficial for your competitors. Dear students, keep studying hard, keep practicing and keep interacting with us on daily basis. Thank you from Equations.